Okay. So in the last session, we are discussing first law of motion or the law of inertia. I had mentioned that we call it the law of motion, first law of motion, or the law of inertia. Inertia we have defined as the inherent tendency of an object to resist any change in its initial state of rest or motion. We had discussed that there are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Also, I had mentioned that inertia जिस चीज का initially object उसी state में. अगर inertia of rest की बात हम कर रहे हैं, that means object is initially at rest. अगर inertia of motion की बात करेंगे, मतलब object initially move कर रहा है. Okay, ये दो type of inertia हमने कल discuss किए थे, inertia of rest and inertia of motion. The examples that we have given, I again repeat. Inertia of rest के case में the object was initially at rest. For example, a passenger bus is at rest, and when it suddenly begins to move, you get a backward jerk. Okay, reason being, body wanted to remain at rest, initial position only. On the other hand, inertia of motion में क्या होता था? Object move कर रहा है. For example, the bus with passengers is moving at a good speed, and sudden brakes are applied, so you get a forward jerk. Okay, so that was example for inertia of motion. And today we are going to discuss inertia of direction. Class, I would again repeat, please ensure that all the board work goes in your notebook. Okay, I am trying to move at a slow speed so that you can do the work side by side also. If at all you are unable to manage, please get back to the video which I had uploaded on the Google Classroom as well. Okay, बाकी I would say please try कि आप side by side कर पाएं. मैं उसी हिसाब से थोड़ा कोशिश कर रही हूँ धीरे चलने की. But anyways, so today we have to discuss inertia of direction. Inertia of direction में सारी वो situation होंगी that the object is moving in a particular direction. हम force लगा के उसकी direction तो बदल रहे हैं, but object will show the resistance, the inertia. तो इसका एक common example क्या है? Again मैंने कहा था आपको जो passengers inside the bus का example है, that is used in all the three inertia, all the three types of inertia. जैसे inertia of direction में आप कैसे उस example को दे सकते हो? That when passengers are moving in a bus which is moving in a straight line, और सडनली जब बस टर्न लेती है या कार टर्न लेती है तो हमें एक आउटवर्ड पुश लगता है. क्यों? क्योंकि हम पहले स्ट्रेट जा रहे थे. ओके, और बॉडी भी स्ट्रेट ही जा रही थी उस व्हीकल के साथ. जब सडनली गाड़ी ने टर्न लिया या व्हीकल जो भी था उसने टर्न लिया, बॉडी स्टिल इज इन द इनर्शिया ऑफ द स्ट्रेट डायरेक्शन. बॉडी अभी सीधा ही रहना चाह रही है, बट क्योंकि हमने टर्न करा दिया व्हीकल को तो इट गेट्स एन आउटवर्ड पुश. वो उसी डायरेक्शन की तरफ अपना झुकाव दिखाती है बॉडी. वही डायरेक्शन थी इनिशियल, तो इनर्शिया वहीं पे आता है. ओके, सो वन एग्जांपल दैट यू विल राइट इज that passengers inside a vehicle get an outward push. Passengers in a vehicle get an outward push when vehicle takes a turn. Okay. सेम एक और एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि तीन सिचुएशन में चल जाएगा. That tying the luggage on the roof of a bus. अगर बस रुकी हुई एकदम से चल पड़ती है तब भी लगेज गिर सकता है. अगर बस चलती हुई एकदम से ब्रेक लगाती है तब भी लगेज गिर सकता है. और अगर बस एक डायरेक्शन चलते हुए सडन टर्न लेती है तब भी लगेज गिर सकता है. सो दिस एग्जांपल ऑफ टाइंग द luggage with the rope on the roof of a bus or roof of a vehicle will also be applicable here. आप यहाँ पे भी example को justify कर सकते हैं. Okay, so another example can be tying luggage is tied with a rope, is tied with a rope on the roof of a bus. ये example तीनों cases में चल रहा है, but you have to be in a position to explain. You have to be able to justify कि हम किस inertia में इसका example क्यों दे रहे हैं. Luggage is tied with a rope on the roof of a bus. Okay, reason being, if the bus takes a sudden sharp turn, the luggage might fall due to inertia.
ओके, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। आपको पहले भी बताया मैंने, इनका क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, या तो आपको सिचुएशन दी होगी और आपको पूछेंगे व्हाई, गिव रीजन, जस्टिफाई, और दी अदर ऑप्शन इज कि आपको खुद ही बोला जा रहा है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कैन बी द sharpening stone. I don't know if you have ever seen it live, बट आपने कभी किसी वीडियो में या मूवी में देखा होगा, जो शार्पनिंग स्टोन होता है, स्टोन होता है, रोटेट करता है काफी स्पीड से, और उसके ऊपर नाइफ या सीजर की एज रखी जाती है जिसको शार्पन करना है। ठीक है, वो नाइफ और सीजर की एज उसके ऊपर रखी जाती है जिसको शार्पन करना है, और ये स्टोन बहुत स्पीड से रोटेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे जब वो एज रखते हैं नाइफ की या सीजर की, ड्यू टू फ्रिक्शन वो रब ऑफ होता है और शार्प हो जाता है, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पार्क्स निकलती हैं, चिंगारियां निकलती हैं। जैसे ये कांटेक्ट में आता है इस रोटेटिंग स्टोन के मेटेलिक सरफेस जिसको शार्प करना है, स्पार्क्स फ्लाई ऑफ एंड दे फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। आई होप अब आपको टेंजेंशियली का मतलब पता है, इस वाली डायरेक्शन में दे फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। ओके, रीजन बीइंग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता हुआ एकदम से सर्कल को छोड़ेगा, वो टेंजेंशियली ही जाएगा। अगर हम धागे पे स्टोन बांध के उसको घुमा रहे हो और एकदम से छोड़ दें stone, the thread, if we release it suddenly it will fly off tangentially। ठीक है, अगर आप फैन के ब्लेड्स के ऊपर कुछ रख देते हो, लाइट पार्टिकल से फ्लावर पेटल्स रख दिए या पेपर पीसेस रख दिए या इरेजर रख दिया, कुछ ऐसा रख दिया, फैन जब ऑन होगा तो देयर इज अ टेंडेंसी दैट द पार्टिकल्स विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। इरेजर तो कंपैरेटिवली हेवी हो गया, बट पेपर पेपर हो या एक पर्टिकुलर थिकनेस का पेपर हो इनफैक्ट, तो वो ऐसे स्प्रिंकल हो जाएगा टेंजेंशियली। ठीक है, सो द रीजन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये एग्जांपल हम कैसे लिखेंगे, एग्जांपल 3, sparks fly off tangentially, sparks fly off tangentially from a sharpening stone। एक और एग्जांपल इसका कॉमन सा है, मड गार्ड्स जो लगे होते हैं व्हीकल के व्हील्स के साइड पे, अगर आपने देखो व्हील्स के साइड पे वो ब्लैक से फ्लैप लगे रहते हैं, गाड़ियों में बाइक्स में एक कवरिंग से ऐसे लगा रहता है। सो ऐसे सपोज ये व्हील है, तो इसके साइड्स में ये मड गार्ड्स लगे होते हैं, ब्लैक से फ्लैप जैसे होते हैं। इनका क्या पर्पज है, जब व्हीकल मशी लैंड में मूव करेगा, कैसे मतलब, जैसे रेनी सीजन है सपोज, कहीं पे पानी डिपॉजिटेड है रोड पे, या फिर ना मडी वाटर इज देयर, तो व्हेन द व्हीकल विल मूव थ्रू इट, आपने देखा होगा द वाटर विल स्प्लैश इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, आइडियली तो जब हम ऐसे एरिया में से जा रहे हैं हमें थोड़ा स्लो मूव करना चाहिए, बट हर कोई इतना समझदार है नहीं हमारे आसपास अनफॉर्चुनेटली, तो एट टाइम्स पीपल मूव विद अ ग्रेटर स्पीड। जब मडी वाटर है या कीचड़ है रास्ते में, वो और तेज चलाते हैं। ओके, सो this particular method of putting mud guards around the wheel, ये by manufacturer ही provided होते हैं, गाड़ी में ऑलरेडी लगे हुए होते हैं। ओके, मड गार्ड्स ऐसे लगे रहते हैं व्हील्स के साइड में, तब जब ये व्हील रोटेट करेगा वाटर में, कि नीचे थोड़ा सा पानी है या कीचड़ है या मडी वाटर है वट, जब ये व्हील रोटेट करेगा तो वो मडी वाटर इसके ऊपर भी स्टिक करेगा। आपने देखा होगा जब व्हील वाटर में से जा रहा है उसके ऊपर भी वाटर की एक लेयर बनती रहती है और उतरती रहती है, क्योंकि वाटर विल नॉट स्टे। तो ये जो वाटर है या मडी वाटर है, व्हेन इट विल लीव द व्हील इट विल आल्सो गो टेंजेंशियली, ये भी यूं ही गिरेगा टेंजेंशियली। तो उसको इधर उधर जाने की बजाय स्ट्रीम करना कि इट शुड फॉल ऑन द ग्राउंड ओनली एंड इट शुड नॉट डैमेज और स्पॉइल द बॉडी ऑफ द कार, द व्हीकल, एंड somebody मूविंग बिहाइंड और मूविंग ऑन साइड। तो ये मड गार्ड्स लगे रहते हैं कि जब ये व्हील कीचड़ में मूव करेगा या पानी में रेनी वाटर में मूव करेगा, तो उसके ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो टेंजेंशियली इस मड गार्ड को हिट करेंगे और मड गार्ड से सीधा ग्राउंड पे गिरेंगे। तो पर्पज ये है मड गार्ड लगाने का। ओके, तो मड गार्ड्स आर आल्सो फॉर reason you can give for inertia of direction, so that when the vehicle moves through water collected on the road or muddy water collected on the road, that should not spoil the body of the vehicle or any passenger moving around. Okay, somebody traveling on the roadside, moving on the roadside. Okay, so example 4 can be
mud guards are provided in vehicles. I hope you will be able to explain the reason. डायग्राम से समझ आ जाएगा रीजन, ठीक है। ये मड गार्ड है, ये व्हील है व्हीकल का, और ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो जो मडी वाटर है वो गिर रहा है। Okay, so mud guards are provided in vehicles. Okay, so I hope inertia of direction is also clear. Inertia of rest हमने discuss किया, inertia of motion किया, inertia of direction किया. This was here we complete the discussion of the first law of motion. ठीक है, इन सारे एग्जांपल्स का अगर आपको रीजन देना हो तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी अगर लिखोगे तो दैट विल बी आल्सो करेक्ट, बट मोर स्पेसिफिक आंसर इज इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया प्रॉपर्टी तो है, बट उसका मेजरमेंट कैसे होगा या उसका अंदाजा कैसे लगेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट में इनर्शिया ज्यादा है, कौन से ऑब्जेक्ट में इनर्शिया कम है? उसका तरीका है मास। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में, दैट मास इज द मेजर ऑफ inertia. Okay, this is a very important statement. Mass is the measure of inertia. मतलब अगर आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, दो सिचुएशन हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों में किसका इनर्शिया ज्यादा है, तो आपने कंपेयर करना है उनका मास। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, मतलब जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा चेंज करने में। ऑब्वियसली एक हैवी ऑब्जेक्ट है उसको पुश करा के मूव करना है, या एक लाइटर ऑब्जेक्ट है उसको पुश कराना है, तो obviously heavy object is difficult to move. Reason being inertia. Heavier object और lighter object move कर रहे हैं, दोनों को रुकवाना है, तो obviously तुम्हें ज्यादा एफर्ट लगेगा heavier object को रुकवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें inertia of motion ज्यादा है। ओके, heavier object के मूव करते हुए डायरेक्शन बदलना ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसमें inertia of direction ज्यादा है। So mass is a measure of inertia. Okay. In your NCERT also there are a few questions. जैसे conceptual question है, I am reading out from your NCERT only. This is on page 118. Question number 1, in-text question है. It says which of the following has more inertia? A rubber ball and a stone of the same size. Okay. A bicycle and a train. A 5 rupee coin and a 1 rupee coin. तो इसमें आप देखो सारे एग्जांपल्स में आपको डिफरेंस इन वेट दिख रहा है। अब बाइसिकल और ट्रेन में ऑब्वियसली ट्रेन में ज्यादा मास है, तो मोर इज द इनर्शिया बिकॉज मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। 5 रुपी कॉइन है 1 रुपी कॉइन है, आपको पता है 5 रुपी कॉइन थोड़ा ज्यादा हेवी होता है, इट इज थिकर एंड हेवियर थिंग्स। ओके, सो 5 रुपी कॉइन विल बी हैविंग मोर इनर्शिया। ठीक है, नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कशन इज ओवर है। बिफोर वी मूव टू द सेकंड लॉ, हम एक फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेंगे। आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ, इनफैक्ट दो सिचुएशन है, एंड यू विल कंपेयर द डोमिनेंट फैक्टर इन दैट। सपोज एक ट्रक है, हेवी ट्रक, बहुत टन्स ऑफ मास कैरी कर रहा है। ओके, वेरी वेरी मैसिव। ठीक है, और दूसरी तरफ एक बुलेट है। ओके, now this truck is having huge mass, enormous mass, and it is moving with a very small velocity, say 2 meter per second. Okay, mass इसका टन्स में और velocity 2 meter per second. Okay, on the other hand, we are talking about a bullet. बाइक बुलेट की बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल बुलेट की बात कर रहे हैं जो गन से फायर होती है। बुलेट से 40 ग्राम्स, बहुत लाइट होती है, बट स्पीड कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो यू सी अ ह्यूज डिफरेंस। सपोज जैसे मैंने कहा ये 2 टन्स का मास है और वेलोसिटी है सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, वेरी वेरी स्लोली इट इज मूविंग। ओके, और धीरे करते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। बुलेट fired from a gun, not the bullet. Okay, mass say 40 grams, velocity
150 meter per second या 200 meter per second. So now you see the huge difference between their values, mass की values में और velocity की values. But आप अगर देखें दोनों ही equal damage कर सकती हैं. इतना मैसिव ट्रक अगर किसी चीज से कोलाइड करेगा वो भी अच्छा खासा डैमेज कर सकता है. एक बुलेट जिसका मास बहुत कम है, साइज बहुत छोटा है, बट वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि इट कैन शैटर अ विंडो पेन, ग्लास ऑफ अ विंडो पेन. ओके, डिपेंड करता है किधर फायर कर रहे हैं आप बुलेट. बुलेट को आप एक गैसोलीन टैंक पे फायर कर देंगे तो वो ब्लास्ट ही हो जाएगा. ओके, सो इट डिपेंड्स. सो different masses, different velocities, but having quite a good amount of impact. तो कौन सी क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी को मिलाकर थोड़ा सा आइडिया देगी हमें कि ऑब्जेक्ट में कितना इम्पैक्ट करने की पावर है. फॉर एग्जाम्पल आई अगेन रिपीट, हम ये कह रहे हैं कि ये मैसिव ट्रक जो बहुत धीरे चल रहा है और ये छोटी सी बुलेट जो बहुत तेज चल रही है, दोनों में काफी टेंडेंसी है डैमेज करने की या कुछ काम करने की. एक में मास ज्यादा है, एक में वेलोसिटी ज्यादा है. इसका मतलब मास और वेलोसिटी दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. अगर मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, तब भी ऑब्जेक्ट काफी डैमेज कर सकता है. अगर मास ज्यादा है और वेलोसिटी कम है, तब भी ऑब्जेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, डैमेज कर सकता है. तो हम इन दोनों क्वांटिटीज को इंपॉर्टेंस देने वाली एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं जो कि इनका प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है. एंड वी कॉल इट मोमेंटम. Very important physical quantity in physics, momentum. It is labeled as p, and the mathematical form that we give for momentum is mass into velocity. It is the product of mass and velocity. प्रोडक्ट में क्या है, दोनों को इंपॉर्टेंस मिलती है. ओके, एक भी क्वांटिटी अगर डोमिनेंट होगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी. So this is a physical quantity that we have defined, momentum. It is the product of mass and velocity. मास तो स्केलर होता है, सिर्फ वैल्यू होती है उसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू. वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड हेंस मोमेंटम इज अ वेक्टर. ओके, सो मोमेंटम आप डिफाइन कैसे करोगे? अगर 1 मार्कर आता है, डिफाइन मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ओके, और व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ मोमेंटम? मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी. मोमेंटम में मास का यूनिट है केजी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम का यूनिट क्या बना? केजी मीटर पर सेकेंड. This is the SI unit of momentum, kg meter per second. Mass kg, velocity meter per second, kg meter per second. Also you will mention that it's a vector quantity. Okay, ये सारी बातें आपको मोमेंटम के बारे में अपनी नोटबुक में लिखनी है. ठीक है, it is the product of mass and velocity, SI unit kg meter per second, and it is a vector quantity. अब इस न्यूमेरिकल के ऊपर, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं. इस फॉर्मूला के ऊपर P इज इक्वल टू mv लिखते हैं हम फॉर्मूला को. ओके, और इसके ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल आते हैं. 3 क्वांटिटीज है देयर, कोई 2 दी होंगी आपको, थर्ड ढूंढनी. दैट इज अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड. दैट इज वन वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन. ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि आपको मास और वेलोसिटी गिवन है और मोमेंटम निकालना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर राइटिंग साइड बाय साइड. ठीक है, बी रेडी विद योर थिंग्स. जब हम क्लास शुरू करते हैं, यू हैव टू बी रेडी विद ऑल योर राइटिंग मटेरियल एंड ऑल. और जितना स्पीड आप रखेंगे अपने लिखने की, इट इज गुड फॉर यू. यू विल बी एबल टू राइट मोस्ट ऑफ द थिंग्स and grasp them better. So P is equal to mv. हमने कहा हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करें. क्वेश्चन इज an object of mass 3 kg is moving at 10 meter per second. Calculate the momentum. Okay, simple substitution. Calculate the momentum.
मैं सिर्फ भी लिख रही हूँ जस्ट टू ओके. So object mass is given, velocity is given, momentum calculate करना है. Simple substitution होगी इस फॉर्मूला में. T is equal to mv, m is 3, v is 10, 30 kg meter per second. Okay. Units का ध्यान रखना है. Half mark is deducted if you don't write the unit or if you write the wrong unit. I hope this is clear to all. अभी जैसे हम मोमेंटम अननोन था, मास और वेलोसिटी गिवन था. आगे ये हो सकता है कि मोमेंटम और मास गिवन है, वेलोसिटी ढूंढनी. तो फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा. Okay, next question. I am making some changes in the question. This time the object mass is given to you and suppose the momentum is given to you. The object of mass 1.5 kg has a momentum of 45 kg meter per second. Find its velocity. Okay. Again, using the same formula, P is equal to mv. P is 45, m 1.5, v ढूंढना. Keeping v on one side, everything goes on the other side. 45 upon 1.5. Simplify this. Decimal हटेगा. Numerator में 0 लगाएंगे. This becomes 450 by 15. And if I simplify this further, this becomes 30. The velocity is how much? 30 meter per second. I hope the calculation is clear to all. We have simply substituted the values. बस आपने units का ध्यान रखना है. Given to you is in SI units, and what the answer you write is also in SI units. That you have to be careful. Okay. All right. Another form of asking the question can be कि आपको दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करना है. ठीक है. I hope all of you have done this question. You have understood. You have written. Next is two masses m and 2m. यहाँ वैल्यूज नहीं दी हुई इस बार मास की, ऐसे ही वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है. एक m है, दूसरा उसका डबल है, 2m. आर मूविंग एट v and say 3v रिस्पेक्टिवली. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मासेस गिवन है वेरिएबल फॉर्म में, उनकी वेलोसिटीज गिवन है वेरिएबल फॉर्म में. यहाँ पे भी v और 3v गिवन है, वैल्यू नहीं गिवन. बस ये गिवन है अगर m वाला मास v से चल रहा है तो 2m वाला उसके 3 टाइम्स वेलोसिटी चल रहा है, 3v से चल रहा है. ओके. सो यू हैव टू कैलकुलेट, you have to not calculate, you have to compare the momentum of both of them. So find the ratio of their momentum. Momentum के plural को ratio of their momenta बोलते हैं. That is the plural form. Okay. So आपको कंपेयर करना है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम. पहला ऑब्जेक्ट है उसका मास m है और वेलोसिटी v है. दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास 2m है और वेलोसिटी 3v है. ओके. ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं. इसका मोमेंटम क्या होगा? p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और ये है p1. सपोज 1 क्यों लिख रहे हैं हम सबस्क्रिप्ट में? क्योंकि हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. और इसका मोमेंटम क्या होगा? p2.
दैट इज 2m into 3v. जो मास गिवन था लिख दिया, जो वेलोसिटी गिवन थी लिख दिया. So this would be 326 mv. Okay. अब रेशियो कैलकुलेट करेंगे इसका. तो P1 is to P2. P1 is to P2 कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. mv divided by 6mv. What does this come out as? ये बन गया रेशियो. Okay. mv gets cancelled, so we are left with 1 is to 6. P1 by P2 is 1 is to 6. जब रेशियो कैलकुलेट करने को कहा है तब आप फाइनल आंसर रेशियो फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ सकते हैं, अदरवाइज नॉट. Okay, so these are the different types of questions which are asked on Milton. या तो न्यूमेरिकल फॉर्म है या ऐसे रेशियो कैलकुलेट करना. नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू रीच द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी हमने इसलिए डिफाइन करी थी क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम मोमेंटम के बेसिस पे ही स्टेटमेंट बनाएंगे. यू शुड बी अवेयर व्हाट डू वी मीन बाय मोमेंटम. ओके, नाउ अगेन बिफोर getting into this second law of motion, एक सिचुएशन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. Suppose there is the car engine has broken down. Okay, गाड़ी चल नहीं रही है, इंजन डेड हो गया. तो हमारे पास ऑप्शन क्या होती है कि थोड़ा सा धक्का लगाया जाएगा गाड़ी को, और उस टाइम पे जो ड्राइवर है वो स्टार्ट प्लग को कोशिश करेगा ऑन करने की, स्पार्क प्लग को. ओके, और अगर ऑन हो गई गाड़ी, विच मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्प्स, तो इट विल स्टार्ट मूविंग. ठीक है, तो वो इनिशिएट कराना है प्रोसेस, कोई पुश करने के लिए चाहिए उसको, गाड़ी को पुश करना. ठीक है, तो सपोज इनिशियल सिचुएशन में ये था कि देयर इज वन पर्सन हु हैज वॉलंटियर्ड कि ठीक है मैं गाड़ी को धक्का दे देता हूँ. ठीक है, ड्राइवर यहाँ बैठे हैं, उसको कैंसिल करता हूँ. सपोज ये कुछ फोर्स लगा रहा है और गाड़ी को सपोज चलने के लिए, ऑन करने के लिए, इंजन स्टार्ट करने के लिए हमें 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ऑब्टेन करानी है. बस एक पर्सन जब उसको फोर्स लगा रहा है, सपोज ये काम, कौन सा काम, 0 से 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दिलाने का काम सपोज हुआ है 2 मिनट. इट टुक 2 मिनट्स for this person to push the car and let it attain a velocity of 1 meter per second, क्योंकि इतना होने पे ये गाड़ी थोड़ा सा इंजन ऑन हो जाएगा, चलने लग जाएगी. ठीक है, इसी का एक और सिचुएशन ये है कि इंस्टेड ऑफ दिस वन पर्सन पुशिंग द कार, बाय चांस 3-4 लोग मिल जाते हैं वॉलंटियर करने के लिए. ओके, सपोज 4 पीपल आर देयर. नाउ सेम सिचुएशन है, अलग दिन, but this time there are 4 people who are helping this person out. Okay, तो यहाँ पे 4 फोर्सेस आएंगे, तो इसका मतलब ठीक है 4 people are applying force. करना वही है, 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दिलानी है इसको, मिल गई. लेकिन इस पर फर्क क्या होगा, ये 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गाड़ी इतने टाइम से कम टाइम में अटेन कर ली. यहाँ 2 मिनट लगे थे एक अकेले पर्सन को इसको धक्का देने में, यहाँ 4 लोग लगे हैं, तो ये काम सपोज 25 सेकेंड्स में हो गया. वहाँ 2 मिनट्स में हो रहा था, यहाँ 25 सेकेंड्स में. ओके, so the difference in both the situations is the applied force, and hence the time taken for the change to happen. Okay, I again repeat, one person applying the force, गाड़ी को स्पीड मिल गई 1 मीटर पर सेकेंड 2 मिनट में.
जब 4 लोग आ गए हेल्प करने में, फोर्स लगाने में, गाड़ी को 1 मीटर पर सेकंड स्पीड मिल गई 25 सेकंड है, आधे से भी कम टाइम है। ओके, फर्क क्या है दोनों केसेस में? अप्लाइड फोर्स का। आप देखो फाइनल रिजल्ट दोनों केसेस में सेम है, गाड़ी का मास उतना ही है, गाड़ी को वेलोसिटी भी उतनी ही मिली है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो यहाँ था वही यहाँ पे आया है, यहाँ इनिशियली मोमेंटम जीरो था, कार इंजन वाज डेड, यहाँ इनिशियली मोमेंटम जीरो था, ठीक है, कार इंजन वाज डेड, बट दोनों केसेस में फाइनल मोमेंटम इज द सेम। जो गाड़ी का मास है वेलोसिटी है, जो गाड़ी का मास है वेलोसिटी है, वो दोनों केसेस में सेम है। ओके, सो सेम मोमेंटम अटेन हो गया, लेकिन आधे से भी कम टाइम में, रीजन बीइंग more force being applied. So what we conclude from this example is that the change in momentum तो जो हुआ है सो हुआ है, 0 से 1 तक वेलोसिटी आई है, चेंज हुआ है मोमेंटम। यहाँ पे भी हुआ, 0 से 1 तक वेलोसिटी आई है, चेंज हुआ है मोमेंटम। चेंज जो हुआ है वो सेम है, लेकिन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू हैपन रिड्यूसेस इफ द फोर्स इज इंक्रीज्ड। ओके, तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में या स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दैट द चेंज इन मोमेंटम, change in p per unit time upon the time taken for this change to happen। कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है कितनी देर में, डिवाइड करें अगर उसको, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा था? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज वर्ड का मतलब क्या होता है? हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज टाइम के हिसाब से देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied। more is the force applied, मोमेंटम उतना जल्दी चेंज होगा। मैं ज्यादा चेंज होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा नहीं कहा मैंने कहा मोमेंटम उतना जल्दी चेंज होगा। इन दोनों केसेस में आप देख रहे हो मोमेंटम सेम हुआ है, जो चेंज आया वो सेम आया, यहाँ भी 0 से 1 हुई है वेलोसिटी, यहाँ भी 0 से 1 हुई है वेलोसिटी, टाइम कम लगा है बस, जब फोर्स ज्यादा लगे। मतलब मोमेंटम चेंज तो होगा पर जल्दी चेंज हो जाएगा अगर फोर्स ज्यादा लगेगी। मोर इज द फोर्स अप्लाइड, मोर इज द फास्टर इज द चेंज इन मोमेंटम। जब कम फोर्स लग रही थी मोमेंटम चेंज तो उतना ही हुआ पर देर से हुआ। सो मोर इज द फोर्स अप्लाइड, फास्टर विल बी द चेंज इन मोमेंटम। लेस इज द फोर्स अप्लाइड, slower will be the rate, there will be the change in momentum। I hope this concept is clear to all। Okay, so this is the Newton's second law of motion।